नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मूसी की बहाली करना ही हुकूमत का हदफ। रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हैदराबाद को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो दुनिया का मुकाबला कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का दिया हुक्म। KTR ने मूसी प्रोजेक्ट मंसूबे को करार दिया गैर ज़रूरी। कहा, इनके पास हुकूमत चलाने का इल्म नहीं। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को किया कबूल। कल सुबह मूसी के मुतासरीन और मल्लाना सागर जाने का किया ऐलान। रेवंत रेड्डी को भी वक्त देने की अपील। अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तेलंगाना हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का दिया अतिया। हिंदुस्तानी रेलवेज ने एडवांस टिकट बुक करवाने की मुद्दत कम करके कर दी इन्हें आधी। मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन के टिकट करवा सकेंगे बुक। हैदरा बहुत जल्द हैदराबाद में भी फुटपाथ पर कब्जों को हटाने के लिए चलाएगी मुहिम। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना सेक्रेटरीट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस के कायदीन की काविशों ने मुल्क को दुनिया का मुकाबला करने के काबिल बनाया है। उन्होंने हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने का वादा करते हुए कहा कि हुकूमत गरीबों को रोज़गार फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने अपोजिशन की तनकीद को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि साबिक़ा हुकूमत तेलंगाना को लूटते रही, जबकि मौजूदा हुकूमत तरक्की की राह पर गामज़न है। उन्होंने मूसी नदी के किनारों पर रहने वालों के लिए मकानात फराहम करने और इन्हें बेहतर माहौल में मुंतकिल करने के मंसूबे का भी जिक्र किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम हैदराबाद को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो दुनिया का मुकाबला कर सके। उन्होंने मुखालिफिन से सवाल किया कि क्या अपोजिशन जमातें हैदराबाद को तरक्की के समेत गामज़न होता हुआ नहीं देखना चाहती। उन्होंने कहा कि मूसी नदी के अहिया के मंसूबे में मेरा कोई मफाद नहीं है। कहा, हमारी हुकूमत का मकसद है कि आवाम की आमदनी में इजाफा किया जाए और गरीबों की मियारी ज़िंदगी को बुलंद किया जाए। అధికారం కోల్పోయిన నిస్పృహతో అసహనంతో 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని పట్టి పీడించి దోసి బందిపోటు దొంగల కంటే దుర్మార్గంగా తయారై డేలైట్ రాబరీస్ పగడిపోటనే బందిపోటు దొంగలు బ్యాంకులలో దూరి దోసుకుంటారని విన్నాం. కానీ అధికారం ముసుగులో, ప్రజాప్రతినిధుల ముసుగులో, మంత్రుల ముసుగులో అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని దోసుకున్న బందిపోటు దొంగలు ఈరోజు కూడా స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్నారు ఈ సమాజంలో. వాళ్ళు ఈరోజు మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలో మూసీ నది యొక్క పునరుజ్జీవనాన్ని అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి బ్యూటిఫికేషన్ అని ఒక కాస్మెటిక్ డైలాగ్ యాడ్ చేసారు. మేము అందాల కోసం పనిచేస్తలేము, అందాల భామలతో కలిసి పనిచేయడం లేదు. మీకు అట్లాంటి ఆలోచన ఉందేమో, అట్లాంటి విధానాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయేమో నాకు తెలియదు. ప్రజలందరికీ తెలుసు ఏ విషయం అనేది. ఈరోజు మా ప్రభుత్వము స్పష్టంగా వాళ్ళు ఏదైతే మేము మూసీ నది పునరుజ్జీవనం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నము, మా ప్రణాళికల్ని, మా విధానాలని ప్రజలకు అపోహలు కల్పించి విష ప్రచారాన్ని లేదా కొత్త బిచ్చగాడికి పొద్దుగూరు తిరగడు అని సామెత చాలా నానుడు పాతది. నేను చెప్పినా మీకేం పెద్దగా నచ్చకపోవచ్చు. కాకపోతే ఆయనకి ఏదో యూట్యూబ్లు కొన్ని పెట్టాలి, సోషల్ మీడియాలో కొంత విష ప్రచారం చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అధికారం వస్తుందని వాడు చెప్పిండండి. ఇట్లాంటి ఆలోచనలు మెదడు నిండా మూసీలో ఉన్న మురుకు కంటే మీ మెదడులో అంతకంటే ఎక్కువ విషం నింపుకొని తెలంగాణ సమాజం మీద దాడి చేస్తున్న వ్యక్తులకు, అదేవిధంగా అప్పుడప్పుడు చాలామంది ఇక్కడ కూర్చున్న పాత్రికేయ మిత్రులు ఉద్యోగము బాధ్యత కాకుండా పర్సనల్గా నాకు చాలామంది మిత్రులుగా శ్రేయోభిలాషులుగా ఉన్నారు, ఎదురుగున్న దాంట్లో చాలామంది. అలాంటి వాళ్ళు కూడా అనుమానం కలిగే విధంగా, అన్న మీరు ఏమైనా చేస్తున్నారంటే తప్పు ఉందేమో, వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు అట్లా చేస్తారు అంటే నా పట్ల సంపూర్ణంగా నమ్మకము, ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పట్ల సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉన్న పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా అనుమానం కలిగే విధంగా విషప్రచారం చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత, ప్రజలకు వివరించాల్సిన బాధ్యత. ఇది సుందరీకరణ కోసం కాదు. మేమేమి దుబాయ్కి వెళ్ళి
సుందరీకరణ కోసం నెత్తి మీద జుట్లు నాటేయించుకొచ్చుకున్న విధానం మాది కాదు. ఆ విధానం మీరు కళ్ళతో చూసిండ్రు. మేము మూసీ నదిని పునరుజ్జీవింప చేయాలి, మూసీ మురికిలో కాలం వెళ్ళదీస్తున్న తెలంగాణ ప్రజలను కాపాడాలి, వాళ్లకు ఒక మంచి జీవన విధానాన్ని ఇవ్వాలి, వాళ్ళకు ఉపాధి కల్పించాలి, వాళ్ళకి ప్రత్యామ్నాయం ఇళ్ళని కేటాయించాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉండడానికి అవసరమైన ప్రణాళికలు రచించాలని ఆలోచన మా ప్రభుత్వానికి ఉన్నది. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने मूसी प्रोजेक्ट को लेकर हुकूमत से सवाल किया। केटीआर ने बीआरएस के दौरे हुकूमत में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की के मुकाबले कांग्रेस हुकूमत को गैर मुनज़्ज़म और उलझन पैदा करने वाली इंतज़ामिया करार दिया। बीआरएस हुकूमत के दौरान आईटी सेक्टर की तरक्की की तरफ इशारा करते हुए केटीआर ने कहा, मोदी हुकूमत ने ITIR प्रोजेक्ट को मनसूख कर दिया था और 1 रुपया भी नहीं दिया, फिर भी हैदराबाद ने IT में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया। कहा, हम 2035 का हदफ 2023 में 12 साल पहले हासिल कर लिया, दुनिया के बेहतरीन ग्रीन सिटी अवार्ड जीता और कई आलमी शहरों को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैसे कमाने मूसी प्रोजेक्ट कर रही है और इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सवालात किए। केटीआर ने रेवंत रेड्डी को हुकूमत के स्कूलों को नीचा दिखाने पर तनकीद की। केटीआर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR के ज़रिए क़ायम करदा रिहायशी स्कूलों के तलबा ज़्यादा बेहतर अंग्रेज़ी बोलते हैं और वो दुनिया की मशहूर कंपनियों में काम कर रहे हैं। केटीआर ने कहा, कांग्रेस की हुकूमत को हुक्मरानी का इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी की ज़मानत मंजूर कर दी है। तकरीबन 9-10 महीने से सलमान अज़हरी जेल में क़ैद है। जारी साल 4 फरवरी को नफरत अंगेज़ तकरीर के इल्ज़ाम में मुफ्ती सलमान अज़हरी को गुजरात ATS की जानिब से हिरासत में लिया गया। इस मामले में ताज़रात हिंद की मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत केस दर्ज किया गया, जिनमें मुख्तलिफ़ मजहबी ग्रुप्स के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और अवाम में फ़साद फैलाने जैसी दफ़ात भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी को जेल से बाहर जाने की इजाज़त देते हुए इन्हें फ़ौरी रिहा करने का हुक्म दिया। गुजरात हुकूमत की तरफ से पेश किए गए कई दलाइल के बावजूद अदालत ने इन्हें फ़ौरी रिहा करने का फ़ैसला किया। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल कर लिया और मूसी नदी प्रोजेक्ट और मल्लना सागर के मुतासरीन से मुलाकात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत एक हकीकी अहिया मनसूबे को रियल इस्टेट प्रोजेक्ट में तब्दील करके तेलंगाना की आवाम का इस्तेहसाल कर रही है। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज देते हुए कहा कि चलें बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर ड्रामे के, आप वक्त और तारीख़ मुंतखब करें या फिर मैं कल सुबह 9 बजे तैयार रहूँगा। मैं ख़ुद गाड़ी चलाकर पहले मूसी नदी प्रोजेक्ट के मुतासरीन से मुलाकात करूँगा और फिर मल्लना सागर जाकर वहाँ की आवाम से मुलाकात करूँगा। इसके बाद पोचम्मा सागर पर मुबाहिसा होगा। उन्होंने रियासती हुकूमत से तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करने, तमाम ज़रूरी इजाज़तनामे हासिल करने और 2013 के ज़मीन उसूल एक्ट के मुताबिक मुतासरीन की मुनासिब आबादकारी का मुतालबा किया। उन्होंने याद दिलाया कि BRS हुकूमत ने मल्लना सागर और दीगर मनसूबों के मुतासरीन को क़ानून के तहत मुआवज़ा दिया था। हरीश राव ने कहा कि हम मूसी नदी के बहाली के ख़िलाफ़ नहीं है, हम आपकी बुलडोज़र पॉलिसी और रियल इस्टेट के जुनून के ख़िलाफ़ है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबका मुतासिर हो रहा है। मुख्यमंत्री गारिकी నేను ఛాలెంజ్ విసురుతా ఉన్నా, మీరు డేట్ నిర్ణయిస్తారా, నన్ను నిర్ణయించమంటారా? పోదాం, రేపు ఉదయం రమ్మంటే 9 గంటలకు మీ ఇంటికి వస్తాను. లేదు నీకు ఏదైనా బిజీ షెడ్యూల్ ఉంటే ఇంకో డేటు టైము మీరే ఇవ్వండి, నేనే డ్రైవింగ్ చేస్తా కారు, నువ్వు పక్కన కూర్చో, ఇద్దరమే పోదాం. గన్మెన్ లేకుండా పోదాం అన్నావు కదా, చక్కగా నీ ఇంటికి వెళ్ళి బయలుదేరి మూసీ దగ్గరికి పోదాం. మూసీ బాధితులందరినీ కలిసి వాళ్ళు ఏమంటారో మాట్లాడదాం. ఆడికేళ్ళు కొండపోచమ్మ సాగర్లో మేము కట్టిన R&R కాలనీ చింత చెట్టు కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. ఆడికేళ్ళు మల్లన్న సాగర్ రిహాబిలిటేషన్ కాలనీకి వెళ్ళి ఆడ యాప చెట్టు ఉన్నది, దాని కింద కూర్చొని మాట్లాడదాం. ఆడికేళ్ళు రంగనాయక సాగర్ కట్ట మీద కూడా కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం. పోదాంపా, రేపు పోదామా, ఎల్లుండి పోదామా? నేనైతే రెడీ, రేపు పొద్దుగాల 9 గంటలకు. ఇఫ్ యు ఆర్ రెడీ పోయేద్దాం. మరి నువ్వే అన్నావు కదా, గన్మెన్ లేకుండా, సెక్యూరిటీ లేకుండా నేను వస్తా అన్నావు కదా, రేపు పొద్దుగాల పోదాం. ఫస్ట్ మూసీకి పోదాం, దగ్గర కదా, మీ ఇంటికి పక్కనే ఉంటుంది, 5 నిమిషాలు. ఆ మూసీలో ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఆ ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఆడికి పోదాం ఫస్ట్. ఆడ కూడా ఏదైనా యాప్ చెట్టు చూసుకొని కింద కూర్చొని వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. ఆడికెళ్ళి మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్, రంగనాయక సాగర్, R&R కాలనీల దగ్గర తీసుకుపోతా.
अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चेयरमैन गौतम अडानी ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए अडानी फाउंडेशन की जानिब से 100 करोड़ रुपए का अतिया चेक की शक्ल में पेश किया। अडानी ग्रुप ने तेलंगाना के नौजवानों के लिए महारतों के फ़रोग़ और बाइख्तियार बनाने के इक़दामात की मुसलसिल हिमायत का भी वादा किया। आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सदर वाईएस शर्मिला ने विजयवाड़ा से तेनाली तक आरटीसी बस में सफ़र किया। शर्मिला ने टिकट खरीदा और पूछा कि एनडीए हुकूमत आंध्र प्रदेश में ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस कब शुरू करेगी। एपी कांग्रेस सदर शर्मिला ने वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को पोस्ट कार्ड भेजा और मुफ्त बस शुरू करने के निफाज की अपील की। उन्होंने कहा कि हज़ारों पोस्ट कार्ड वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भेजे जाएंगे। शर्मिला ने कहा कि 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुफ्त बस सर्विस पर कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। कहा तेलंगाना में 1 हफ्ते में नाफिज किया गया। उन्होंने कहा कि रोज़ाना 20 लाख ख़वातीन सफ़र करती है, जिससे रोज़ाना 7 करोड़ और माहाना 300 करोड़ की आमदनी होती है। शर्मिला ने कहा, क्या आप डरते हैं कि ये 300 करोड़ आरटीसी को देना पड़ेगा। शर्मिला ने ख़वातीन मुसाफिरों से भी बातचीत की। పోస్ట్ కార్డుల వల్ల మేమే కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి పోస్ట్ కార్డులు ఈ రోజు రేపు ఎల్లుండి ఈ 3 రోజుల్లో వేల కొద్ది పోస్ట్ కార్డులు చంద్రబాబు గారు పంపించబోతున్నాం. చంద్రబాబు గారు ఇది చూసైనా సరే మహిళలకు ఉచిత బస్సు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. यूपी के बहराइच तशद्दुद केस के 2 मुलजिमीन पर पुलिस ने फायरिंग करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि ये लोग नेपाल फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके नतीजे में इन पर गोलियां चलाई गई। पुलिस के मुताबिक इस इनकाउंटर में 2 मुलजिमीन ज़ख्मी हो गए। वाक़े के दौरान पुलिस ने 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का इल्ज़ाम है कि कत्ल केस के अहम मुलजिम अब्दुल हमीद के बेटे और कत्ल के दीगर मुलजिमीन सरफराज और फ़हीम नेपाल फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें पकड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में सरफराज और फ़हीम के पैर में गोली लगी। ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि इनकाउंटर के दौरान अब्दुल हमीद समेत 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं भागना चाहिए, गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना, गलती वहाँ की। अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर, हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चलो गाड़ी घुमाओ, अरे गाड़ी घुमाइए। डॉक्टर साहब क्या नाम था आरोपी और कहाँ गोली लगी है? 2 व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ, जो 2 लोग, एक सरफराज करके नाम है और एक तालिम करके, मोहम्मद तालिम। तो दोनों के, एक के दाएं पैर में है, एक के बाएं पैर में है। क्या स्थिति है सर? स्थिति दोनों की सही है। कहाँ भेजा गया सर? थोड़ा जो गोली है, गोली अभी भी अंदर ही है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट उसमें नहीं दिखा है। बाकी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहराइच के लिए रेफर कर दिया है, वहाँ एक्सरे और फर्दर मैनेजमेंट के लिए। स्थिति दोनों की नॉर्मल है। कब लेके आए थे यहाँ पे? 2:35 के करीब, दोपहर में 2:35। गोली निकाल दी गई इसकी? गोली। हिंदुस्तानी रेलवेज़ ने एडवांस टिकट बुक करने की मुद्दत कम करके आधी कर दी है। रेलवेज़ ने एक बयान में कहा कि मुसाफिर अब 60 दिन से पहले ट्रेन के टिकट बुक करवा सकेंगे, जबकि पहले यह मुद्दत 120 दिन थी। इस तब्दीली का इतलाक़ अगले महीने की 1 तारीख से होगा। रेलवेज़ ने कहा कि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें दिन में चलने वाली बाज़ एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के मामले में कोई तब्दीली नहीं होगी, जहां पहले ही पेशगी रिजर्वेशन की मुद्दत कम है। अलबत्ता गैर मुल्की सयाहों के लिए एडवांस बुकिंग के लिए वक्त की हद 365 दिन की सतह पर बरकरार रहेगी। मेदक ज़िले के रामैयापेट मंडल के अनकापेट गांव में बसों की कमी पर तलबा ने सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। तलबा ने मुतालबा किया कि इजाफी बसें फराहम की जाए ताकि इन्हें स्कूल व कॉलेजेस जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस एहतजाज से ट्रैफिक में खलल पड़ा।
हैदरा जल्द ही शहर की सड़कों पर फुटपाथ पर किए गए मुस्तकिल कब्ज़ों को हटाने के लिए मुहिम शुरू करेगी। ये फैसला मुश्तरका जायज़ा मीटिंग के दौरान कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की क़ियादत में किया गया। कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ ने वजाहत की कि फुटपाथ पर कब्ज़ा करने वाले ताजिरों को पहले नोटिस दी जाएगी ताकि वो खुद अपना सामान हटा सकें। इस मुहिम के दौरान ट्रांसफार्मर्स, टेली कम्युनिकेशन कनेक्शंस और कूड़े के डब्बों के इर्द गिर्द मौजूद रुकावटों को भी हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। रंगनाथ ने बताया कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए हैदरा महकमा ट्रैफिक के साथ मिलकर काम करेगा ताकि ट्रैफिक के औकात में भीड़ को कम किया जा सके और सड़कों को बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने बाकायदा तौर पर हैदरा को मज़ीद इख्तियारात देते हुए अवामी असासों जैसे सड़कें, नाले, गलियाँ, आबी ज़खायर, खुली जगहें और अवामी यादगारों की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप दी है। मूसी के मुतासरीन ने तेलंगाना भवन पहुंचकर BRS के वर्किंग सदर KTR से मुलाकात की। इस मौके पर KTR ने मुतासरीन से बात करते हुए इन्हें हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद रहने और किसी के बहकाव में ना आने की अपील की। इस मौके पर मुतासरीन ने अदालत से इन्हें स्टे ऑर्डर दिलाने पर साबिक़ वज़ीर आला KCR और KTR का शुक्रिया अदा किया और KTR की शॉलपोशी की। अगर आके कोई बुलडोजर लेके आपके घर आएगा तो हम आपके साथ हैं, हम आके बुलडोजर के और आपके घर के बीच में हमारे BRS पार्टी के लीडर आके ठहर जाएंगे। ये वादा है आपसे। और एक बात नहीं, और एक बात, मैं डायलॉग बाजी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके खानों को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आप जब तक एकजुट रहेंगे, आप जब तक इकट्ठे रहेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। पर आप में से फिर तोड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को बोलेंगे भाई आपको मैं अच्छा घर दिलाता हूँ चलो, और अगर इसमें से कुछ 5-10 लोग निकल गए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। तो इस वास्ते मैं बोल रहा हूँ, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। अगर एक के घर के पास आ गया बुलडोजर तो सारे लोग निकलो, भगाओ उसको वहां से, वरना नहीं होता है। वरना आपको अलग अलग करके सियासत करेंगे, आपसे अलग अलग करके आपको बेदखल करेंगे। तो इस वास्ते गुजारिश है, आप इस साजिश में मत जाना। आपको बहुत सुनाएंगे, आपके खानों को खुश करने के लिए बोलेंगे, आपके घरों को आपके बच्चों को अच्छा सा अच्छा स्कूल में दाखिल कर देंगे, तालीम अच्छा दिलाएंगे, आपको अच्छा पैकेज दिलाएंगे, अच्छा घर दिलाएंगे, जबरदस्त ये करेंगे वो करेंगे, बहुत कुछ सुनाएंगे आपको। आप बिल्कुल भी उनके बातों में ना आओ। और आखिरी में मैं एक और बात भी बोलता हूं, मैं इसलिए बोला आपकी हक की लड़ाई, क्योंकि 2013 में 11 साल पहले जब हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत थी दिल्ली में, तो वो लोग एक एक्ट लेके आए। उसमें क्या है, जमीन अगर किसी का लेना है गरीब का, तो उसको 3 गुना आपको मार्केट का रकम देना पड़ता। अगर ये लेके चलो कि आपका घर आज अगर रजिस्ट्रेशन आपका घर 25 लाख से होता, अगर ये लेके चलो, या 12 लाख से होता, इनको 3 गुना पैसा देना पड़ता। और साथ ही साथ अगर आपको बेदखल करना है तो हर एक घर में एक बच्चे को या बच्ची को एक एम्प्लॉयमेंट देना पड़ता, एक नौकरी देना पड़ता। और तीसरी बात, आपको वहां से हकालने के लिए 5 लाख रुपया देना पड़ता। ये सब दिए बगैर, आपको नोटिस दिए बगैर अगर कोई आके बोलता कि आपको हट जाना पड़ता, गिरा देंगे हम, किसी सुनने की जरूरत नहीं है। बोलो आप नोटिस कहाँ है, दिखाओ कौन से एक्ट के अंडर आप आए, क्या GO है, क्या गवर्नमेंट ऑर्डर है, क्या चीज है आपके पास, क्या कागज है, बताओ। बोलो, आपकी हक की लड़ाई है, या आपकी कोई कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई लाचार होने की जरूरत नहीं है। ये आपकी हक की लड़ाई है, आपकी घर की मामला है। तो मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं, आप थोड़ा सब्र से काम लो, हमारे लॉयरों से मिल लो, वकीलों से, पूरे कागज आपके पास जो है दे दो, आपके लिए हम लड़ेंगे। और जो लीडर है वहां पे आपको आज गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे भी आप जरा नजर रखो और बोलो उनको, पूछो उनको कि क्या हम लोग करें, आपको हमारी तरफ से क्या तकलीफ हुआ, आपको वोट दिए, आपको लीडर बनाए, आज आप हमारे को बेघर कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं सब? आप जरूर ये सवाल पूछना, और खास जब हमारे बहनें पूछेंगी, क्योंकि मालूम है आज हमारे बहनें आप चलाते घर। क्योंकि जब हमारी तकलीफ थी जब तो आए नहीं आप, अब हमारी तकलीफ के बाद हम जाके वहां पर मिले तो हम KTR साहब से मिले तो आप यहाँ आके हमारे से बोल रहे हैं हम बात नहीं करते, जैसे चले जाओगे तो हमारे पास से कोई भी नहीं करेगा।
जी कोई भी नहीं करे हमारे पूरे ग्रुप में बोलिए जी बोलो कि हमारा जिस वक्त साथ देना था उस वक्त हमको कोई नहीं दिया। जी आज इतने परेशान हम घरे घर परेशान रोने रहे कि पैसा निकला हमारा कि घर आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये सोच के रोले रहे, लेकिन हमारे कुछ वक्त आगे नहीं पूछे। और आज क्या बोल रहे लीडर आके हम बात कर रहे, हम तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे, भाई तुम लड़ रहे तो हमारे साथ आप जैसा बैठे उनके भी जो बड़े हमको बताना ना, हमको मीटिंग कराना ना, जैसा आपके पास होगी वैसे ही कराना ना। हमारा भी दिमाग काम कर रहा, हम भी पागल नहीं है, अब तक थे पागल, अब नहीं है पागल। हम समझ गए हमारे कौन खैर है और हमारे दुश्मन है, हम समझ चुके हैं। हमारे लिए ना ये तकलीफ जो देती है ना, हमारे घरों से जो इतनी बड़ी तकलीफ, कहाँ जाएंगे और बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे लेके, पूरे बच्चे स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में है, कोई प्राइवेट स्कूलों में है, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चों के। अम्मा किसी के शौक की वजह से, किसी के अपने जिद की वजह से आज ये प्रोजेक्ट हो रहा। कौन पूछ रहे हैं अम्मा ये प्रोजेक्ट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गरीबों को बेघर करने के लिए कौन बोल रहा? कोई पूछा क्या हैदराबाद में कि भाई आप ट्रैफिक पुलिस ने आज सईदाबाद में ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम के जरिए अवाम में शऊर बेदार किया। पुलिस ने कहा कि अगर 18 साल के कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुस्तकबिल में इस केस की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पुलिस ने वालिदैन से अपील की कि वो छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें। जो बच्चा जो है 18 साल से पहले गाड़ी चलाए तो माइनर ड्राइविंग पे केस बुक हो रहा, माइनर ड्राइविंग पे केस बुक हो गया तो उनका क्या बोलते हैं, उनका लाइफ रिस्क में आ जाता। क्यों बोले तो अब उन्होंने पढ़ लिए थोड़ा बहुत, पासपोर्ट बनने को भी नहीं होता और गवर्नमेंट जॉब मिलने की भी ऐसा मुश्किल होता। क्यों बोले तो बचपन में इनको माइनर ड्राइविंग का केस है बोल के बोलता कौन, SB इंक्वायरी वाला। ऐसा कुछ भी करो मगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना ही करना, नहीं करे तो मुश्किल होता बोल के बोल रहा हूँ। थैंक यू। आजकल बच्चा और क्या बोलते हैं ट्रैकलेस रोड नहीं है तो हर जगह रात में खुली जगह है वहाँ पर स्टंट्स मार रही, स्टंट मारे तो क्या है फ़ायदा, एक टायर में निकाल के ऐसे ही जा रही। ये सब रिकॉर्ड होता ना, ऑफिसर साथ देखते रहते, जब वो क्या होता रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाता। इसलिए ये स्टंट सा भी नको करो। क्यों बोले तो वो स्टंट करे से वजह से थोड़ा बहुत आप लोगों को खुश रहता, मगर क्या है कुछ तो भी छोटी गलती हो गया समझो, स्किड हो गया, क्या होता जब मारा ज़्यादा लगती। इसलिए सबको बोल रहा हूँ रूल्स फॉलो करो, ये स्टंट सा नको करो बोल के रिक्वेस्ट है। थैंक यू एवरीबॉडी। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मूसी की बहाली करना ही हुकूमत का हदफ, रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम हैदराबाद को एक ऐसा शहर बनाएंगे जो दुनिया का मुकाबला कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अजहरी को फौरी रिहा करने का दिया हुक्म। KTR ने मूसी प्रोजेक्ट मंसूबे को करार दिया गैर ज़रूरी। कहा इनके पास हुकूमत चलाने का इल्म नहीं। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के चैलेंज को किया कबूल। कल सुबह मूसी के मुतासरीन और मल्लाना सागर जाने का किया ऐलान। रेवंत रेड्डी को भी वक्त देने की अपील। अडानी ग्रुप ने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए तेलंगाना हुकूमत को 100 करोड़ रुपए का दिया अतिया। हिंदुस्तानी रेलवेज ने एडवांस टिकट बुक करवाने की मुद्दत कम करके कर दी इन्हें आधी। मुसाफिर अब 60 दिन पहले ट्रेन के टिकट करवा सकेंगे बुक। हैदरा बहुत जल्द हैदराबाद में भी फुटपाथ पर कब्जों को हटाने के लिए चलाएगी मुहिम। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।